Hey everyone, this is Meenakshi Karwa and you're watching Tip with Tales. If you're new to my channel, please subscribe my channel and also press the bell icon ting 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 so that you get notified whenever I post a new video. So welcome to the part 3 of the new course series. We are going to talk about the 6 elective subjects today, which subject to choose and what is the strategy to prepare the subject. Starting with the very first one, 6A, risk management. In this subject, compared to the past few attempts, we are seeing that majority of students are opting for risk management nowadays. The reason being this subject, after getting amended, has become really small, concise and easy if we compare to the past few attempts. The reason being a little difficult chapter which had the elements of probability theory in it has been now removed from RM. So now it's little concise, it is easy and it is small. And for classes, when you see on YouTube, you will find Sanjay Saraf sir's guidance video on how to prepare risk management. In that video, he has even said that you can score 40 on 40 in risk management. It has become now that manageable subject. In a way, it is a self-study subject. Classes are not that required. This subject includes the understanding of types of risk. And you can manage it in self-study as well. The Sanjay Saraf sir's video is very much helpful for the preparation of this subject. And the most important thing which will help you in this subject is the mapping sheet. Mapping sheet is a kind of index where when you study from the book, and you know that electives is an open book exam. So what happens is when you're giving the exams, you have to see the question and remember कि ये question कहाँ देखा था, तो इसका आंसर कहाँ मिलेगा, वो बुक में फटाफट ढूंढना है and आंसर देना है. This is the way you appear for elective exams. So mapping sheet helps in a way that you make a kind of index that these are the important concepts and the questions are available at this page and they can be located, the answers can be located at this proper place. You write down in the index sheet which is called as mapping sheet. तो जब भी एग्जाम देना होता है, so you just refer to the mapping sheet and वो जो भी concepts के आंसर्स होते हैं वो फटाफट आपको मिलते जाते हैं. एंड जितना टाइम बचता है, जितना फटाफट आपको आंसर्स मिलते हैं, उतने ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने का स्कोप होता है इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में. सो दिस इज हाउ मैपिंग शीट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस सब्जेक्ट एज वेल. ये सब्जेक्ट्स जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स आप ऑप्ट कर रहे हो, इसमें इफ़ यू स्कोर गुड मार्क्स इट विल हेल्प यू टू क्लियर योर एग्रीगेट. इसमें वी कैन स्कोर लाइक वेरी मच गुड मार्क्स. MCQ होता है, ओपन बुक एग्जाम होता है एंड मैपिंग शीट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फाइंडिंग योर आंसर्स वेरी क्विकली. So what to refer is study material. You can refer ICI study material as well as your mapping sheets. And if आप लोग classes ले रहे हैं तो आपके classes की study materials. ये सब यूज़ करना है to study. Your mapping sheet is, I am again saying, very much important thing क्योंकि वो ही है जो लास्ट में एग्जाम तक आपके साथ रहनी चाहिए, आपके बुक के साथ में. And that will help you to score good marks in this subject as well as help you to cover your aggregate. Next, coming to 6B, FSCM, Financial Services and Capital Market. This subject is a bit more vast as compared to 6A because it includes two parts. That is, first is your main study material part and second is SEBI regulation part. So this is a bit big subject and it requires SFM knowledge. Like आपको काफ़ी इंटरेस्ट है फाइनेंस में एंड यू कैन रिमेंबर द फाइनेंशियल टर्म्स एंड स्टार्टिंग से यू आर बीन इनटू फाइनेंस, तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है. यू शुड गो इनटू दिस सब्जेक्ट क्योंकि देखो कैसा है, इलेक्टिव्स में क्या होता है कि आप दूसरों से पूछ के नहीं कर सकते हो कि क्या करना है. भाई तूने RM लिया है तो मैं भी RM लूँगा, ऐसा नहीं होता है. इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट. अगर आपका इंटरेस्ट फाइनेंस में है, आपका इंटरेस्ट SFM में है, आपका इंटरेस्ट लॉ में है, अगर आपका इंटरेस्ट लॉ में है तो आप क्यों FSCM लोगे, और लोगे तो फिर भारी पड़ेगा. सिंपल सी बात है. सो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जाना है. जहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छा लगता है पढ़ना, आप एंजॉय करते हो पढ़ना, आपको आंसर्स जल्दी लोकेट करने हो रहा है, तो यू विल सक्सीड इन दैट सब्जेक्ट. Electives is basically about how quickly you can retain the concepts, how quickly you can remember कि मैंने ये क्वेश्चन कब देखा था, कहाँ देखा था और इसका आंसर कहाँ मिलेगा.
So that is how you will score good marks in elective subjects. So FSCM is based upon financial interest. It has a huge element of SFM related into it, and what to study is your again study material, that is ICI study material, your SEBI regulations again from ICI, and your mapping sheet. Very much important again, क्योंकि एक तो बड़ा सब्जेक्ट है तो इसका मैपिंग शीट भी बड़ा बनेगा क्योंकि ज़्यादा कंटेंट्स आएंगे. सिंस द सब्जेक्ट इज वास्ट, तो आप बिना मैपिंग शीट के आप ऐसे नहीं कर सकते कि भाई मेरे को अपने आप याद आ जाएगा. ऐसे नहीं होता है, सब भूल जाओगे, सब मिक्सअप हो जाएगा. सो उसके लिए मैपिंग शीट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. बड़ा मैपिंग शीट रहेगा, अच्छे से मेंटेन करके रखना, अच्छे से बनाना उसको पहले, एंड एग्जाम टाइम पे उसको साथ में रखना, सो दैट इट विल हेल्प यू टू कवर द होल सब्जेक्ट इन अ फ्यू पेजेस. While reading this subject, you do not have to mug up the study material. Just read the study material and underline the important lines. जो आपको important लग रही है वो lines underline कर लीजिए and simultaneously update into your mapping sheet. So जब आप mapping sheet में ढूंढने जाओगे तो you will get के ये वाला line important था और यहाँ पे आंसर मिल सकता है. So this is the way to prepare. FSCM में जो रिसेंट अमेंडमेंट्स आए हैं उसमें नए चैप्टर्स ऐड किए गए हैं, दैट इज़ फैक्टरिंग, लीजिंग. ये सब चैप्टर्स SFM की न्यू कोर्स के सब्जेक्ट्स में से निकाल दिए थे. सो दे आर नाउ इंक्लूडेड इन इलेक्टिव सब्जेक्ट ऑफ FSCM. तो दी हाई चांसेस है कि ये वाले चैप्टर्स से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो ये चैप्टर्स अच्छे से कर लेना. दीज आर इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स. Next, coming to 6C, international taxation. दिस इज अगेन एन इंटरेस्ट बेस्ड सब्जेक्ट, एंड ऐसा नहीं कि भाई हल्के में ले लिया था काफ़ी लोगों ने. लास्ट फ्यू अटेम्प्ट्स में इंटरनेशनल टैक्सेशन बोला तो हमारे डायरेक्ट टैक्स में आता है 30 मार्क्स का, वही इंटरनेशनल टैक्सेशन है. तो हम जब ये इंटरनेशनल कर लेंगे तो वो भी कवर हो जाएगा 30 मार्क्स का. ये अप्रोच बिल्कुल ही गलत है, वेरी रॉन्ग अप्रोच. यू डू नॉट हैव टू गो विद दिस अप्रोच. इसके वजह से क्या हुआ था, लास्ट फ्यू अटेम्प्ट्स में इंटरनेशनल टैक्सेशन के पेपर काफ़ी टफ आए थे, एंड बहुत लोग जिनका ग्रुप 2 फ्लंक हो गया था उनका मेन रीजन इंटरनेशनल टैक्सेशन था. सो दिस सब्जेक्ट इज फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट बेस्ड सब्जेक्ट. आपको इंटरनेशनल टैक्सेशन का नॉलेज होना चाहिए, डेप्थ में नॉलेज होना चाहिए, और ये जो सब्जेक्ट है इसमें आपको और इन डीप जाना पड़ेगा. ये डायरेक्ट टैक्स का एडवांस्ड वर्जन है क्योंकि ये इंटरनेशनली कवर करता है पूरा डायरेक्ट टैक्स. सो आपको ये अच्छे से पढ़ना पड़ेगा. डायरेक्ट टैक्स को अलग सब्जेक्ट मानो, इसको अलग सब्जेक्ट मानो. दोनों को ये नहीं करना है कि भाई इससे कर लिया तो उससे भी हो जाएगा. दोनों को अलग अलग करना होगा. इंटरनेशनल टैक्सेशन की अच्छे से स्टडी करना, इन डेप्थ स्टडी करना. यू शुड हैव द होल नॉलेज अबाउट इंटरनेशनल टैक्सेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्लासेस लगेंगी क्योंकि ये टेक्निकल सब्जेक्ट है. ऐसा नहीं है कि पहले से किया हुआ है तो अपने आप. हाँ, जिसको सेल्फ स्टडी है और इंटरेस्ट से समझ रहा है कि भाई समझ जाएगा, फ्यू एक्सेप्शंस है तो उनके लिए मत लीजिए. लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि नॉर्मली स्टूडेंट्स शुड गो फॉर कोचिंग इन दिस सब्जेक्ट. कोचिंग के लिए आपको VG सर काफ़ी अच्छे रहेंगे इसमें, और दुर्गेश सर भी काफ़ी अच्छे हैं फॉर इंटरनेशनल टैक्सेशन. सो यू कैन गो फॉर देयर कोचिंग, एंड उनके कोचिंग में आपको पूरा वो लोग समझा देंगे कि पेपर कैसे आ सकता है, आपको कैसे पढ़ना है. द फैकल्टी बुक्स एंड द मैपिंग शीट्स अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट. मैपिंग शीट तो हर सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट ही है इलेक्टिव्स के, क्योंकि ओपन बुक एग्जाम है तो आपको क्विक आंसर्स आने के लिए मैपिंग शीट इज द की. और एक चीज़, ये जो भी FSCM सब्जेक्ट था या फिर इंटरनेशनल टैक्सेशन है, इलेक्टिव्स के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब में केस स्टडीज़ आपको सबसे पहले ICI के प्रैक्टिस करना है. रिमेंबर, ICI केस स्टडीज़ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस एंड शुड बी गिवन फर्स्ट प्रायोरिटी. वो केस स्टडीज़ प्रैक्टिस करने के लिए जो आपको लगता है कि क्लासेस लगाएंगे तो हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा. यू विल हैव टू पुट योर ओन एफर्ट्स इन केस स्टडीज़. आप जितना सेल्फ करेंगे केस स्टडीज़ को, उतना आपको समझ में आएगा कि आंसर्स कैसे प्रोड्यूस करना है एग्जाम में. रट्टा मार के केस स्टडीज़ के आंसर नहीं लाने हैं, आंसर्स को प्रोड्यूस करना सीखना है. वो कैसे सीखेंगे, जब ICI की केस स्टडीज़ आप पढ़ रहे हो तो वो टाइम पे यू हैव टू सी कि अगर सपोज एक क्वेश्चन है तो उसके पॉइंटर्स के हिसाब से आंसर कैसे प्रोड्यूस किया है. वो फिर आप लोग नए केस स्टडीज़ में ट्राई करने का, दूसरा केस स्टडी लेने का एंड सेल्फ ट्राई करने का कि मैं इसका आंसर्स कैसे प्रोड्यूस कर सकता हूँ, एंड देन कंपेयर करने का ICI के आंसर से. सो दिस इज़ हाउ यू प्रैक्टिस केस स्टडीज़. क्योंकि एग्जाम में जब न्यू केस स्टडी आएगा तो यू शुड नो हाउ यू हैव टू प्रोड्यूस द केस स्टडी. मगअप करके आप वहाँ पे नहीं ला सकते हैं ना.
सो दिस इज अबाउट केस स्टडीज कि आपको एवरी सब्जेक्ट में जहाँ पे केस स्टडीज आएंगे वहाँ पे ICAI केस स्टडीज भी प्रैक्टिस करना है, पास्ट पेपर्स के, मॉक टेस्ट पेपर्स के, RTPs के, यहाँ के भी केस स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट है. सो गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू केस स्टडीज. Moving on to 6D, economic laws. This subject is based on law. सो आपका ग्रुप 1 का जो अलाइड लॉ है उसमें से काफ़ी 3-4 चैप्टर्स हैं जो इसमें कवर्ड है इकोनॉमिक लॉज में. सो बेसिक चीज़ क्या है, आपको लॉ में इंटरेस्ट होना चाहिए. इट इज़ प्रेफरेबल फॉर स्टूडेंट्स हु कैन इंटरप्रेट द प्रोविजंस ऑफ लॉ, जिनको आता है कि लॉ समझ में भी आता है, लॉ में प्रो होने चाहिए, लॉ के जो बेयर एक्ट के प्रोविजंस है या कोई डिफ़िकल्ट प्रोविजंस है उनको इंटरप्रेट करना आना चाहिए. सो दिस इज़ फॉर दो स्टूडेंट्स हु कैन लाइक ईजीली स्कोर इन लॉ. या और इसमें क्या होता है कि आपका ग्रुप 1 का लॉ भी इंक्लूडेड है. तो अगर आपका ग्रुप 1 क्लियर हो गया है तो ऐसा नहीं है कि भाई अभी ग्रुप 2 में लॉ का टेंशन नहीं है, एक बार हो गया है हमारा, भले कितने भी अच्छे मार्क्स आए तो भी आपको वापस ये सब्जेक्ट के लिए लॉ पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ नहीं कवर्ड है. हाँ, मेजॉरिटी पोर्शन कवर्ड है, तो आपको और लॉ में इंटरेस्ट भी है तो दिस सब्जेक्ट कैन गेट यू वेरी गुड मार्क्स. सो यू हैव टू प्रिपेयर अ मैपिंग शीट फॉर दिस सब्जेक्ट एज वेल. और मैपिंग शीट की हेल्प से, आपके इंटरेस्ट के हेल्प से और इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट के हेल्प से यू कैन स्कोर वेरी मच गुड मार्क्स इन इकोनॉमिक लॉज. फॉर क्लासेस ऑफ दिस सब्जेक्ट, दर्शन सर एंड अमित पोपली सर आर recommended for economic laws. Other than classes, self study is also very much comfortable. आपको ज़रूरी नहीं है कि इतना टेक्निकल है कि क्लासेस लगेंगे ही, ऐसा ज़रूरी नहीं है. You can go for self study as well if you have that much interest in law. और समझना आता है अच्छे से, कि स्टडीज प्रैक्टिस करना आता है, मैपिंग शीट बनाना आता है, आंसर निकालना आता है, तो यू कैन गो फॉर सेल्फ स्टडी आराम से, नो नीड ऑफ क्लासेस. Next, moving on to 6E, GFRS. This is a very technical subject, क्योंकि first of all तो ये हमने पहले कभी पढ़ा नहीं है CA फाइनल में. So overall a new concept, इन डेप्थ में जाना पड़ेगा पढ़ने के टाइम पे भी. एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स द एलिमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एज वेल. सो ओवरऑल टेक्निकल सब्जेक्ट, इसमें क्लासेस लगेगी ही लगेगी. एंड सेकेंड थिंग, जिनको आगे GFRS में करियर बनाना है उनके लिए बेस्ट प्रेफर्ड सब्जेक्ट है. आपको अभी से ये सब्जेक्ट की आदत हो जानी चाहिए, तो इसमें काफ़ी अच्छा करियर भी बन सकता है आगे. बट इट इज़ वेरी रेयरली सिलेक्टेड बाय स्टूडेंट्स फॉर CA एग्जाम्स. काफ़ी रेयर नंबर्स में सिलेक्ट करते हैं, बहुत कम ही लोग सिलेक्ट करते हैं कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स. सो दिस इज़ अबाउट GFRS कि इसमें टेक्निकल भी है और क्लासेस भी लेनी चाहिए. मैपिंग शीट्स तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट ही है, और इंटरेस्ट होना चाहिए. वेरी फर्स्ट थिंग, इंटरेस्ट तो होना ही चाहिए. वो जो इंटरनेशनल के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कवर करना है, बाकी जो नई चीज़ें कवर करनी है, उन सब में आपको इंटरेस्ट होना चाहिए. ऐसा नहीं कि भाई टेक्निकल है, सिर्फ थोड़े से मार्क्स के लिए, एक सब्जेक्ट के लिए मैं इतना क्यों पढ़ूँ, ऐसा है तो फिर रहने दो, डू नॉट गो फॉर दिस सब्जेक्ट. बट ओवरऑल गुड सब्जेक्ट, जिसको इसी के अंदर आगे करियर बनाना है, तो वेरी गुड सब्जेक्ट फॉर. Lastly, coming to 6F. This subject is based on case studies overall and it requires knowledge of all the subjects. सब सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा एलिमेंट बना के ये सब्जेक्ट बनाया गया है. सो इसमें क्या होता है कि बहुत ही रेयर, मेरे ख्याल से बहुत ही रेयर लोगों ने ये सब्जेक्ट लिया होगा, क्योंकि मेन चीज़ तो क्या है, पहले आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है. सो एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है वो चीज़ों के साथ हम खेलेंगे नहीं, खतरों के खिलाड़ी नहीं बनना है, एग्ज़ाम क्लियर करना है. और सेकेंड थिंग क्या है कि इसमें हर एक सब्जेक्ट में से थोड़ा एलिमेंट होना चाहिए. सो जो ऑलराउंडर है कि भाई हर चीज़ का नॉलेज है, वो ही बच्चा ये चीज़ एक्सेप्ट कर सकता है कि हम लोग ये सब्जेक्ट ऑप्ट करेंगे. सो इफ़ यू आर अ काइंड ऑफ स्टूडेंट कि ऑलराउंडर है, हर चीज़ का नॉलेज है और एक्सप्लोर करने में भी इंटरेस्ट है, देन गो फॉर 6A. So this is all about the video. This video is covering all the elements of these 6 subjects of electives, and by this video we are done with the series of new course. Group 1 is the part 1, Group 2 is part 2, and part 3 is electives. I'll give you the link of earlier 2 videos in the video as well. You can go and watch them if required. And if you found this video helpful, please give a thumbs up as appreciation,
And I know you guys are a bit struggling to study at this moment. I can see lots of messages that we are not motivated enough to study, or even if we prepare a schedule we are not able to follow it. So I am coming with a very special video for all of you very soon about the study schedule you need to follow in a day, which will give you 10 hours of output in a day. So for that video, stay tuned to the channel, subscribe the channel, give me appreciation in the form of likes, share this video, and I'll see you in the next video very soon. Till then, take care. Bye bye.